Hi everyone. A very good evening, and I welcome our distinguished speaker today, CA Shraddha Sanghi, and everyone else in this knowledge sharing session of Visionary Women, wherein we will learn about the opportunities in RERA for the chartered accountants. Visionary Women, founded by CA Crispy Murakia, is created to support and empower women professionals. The idea is to provide them with remote work opportunities and specialized projects that help them grow in their careers. This platform is also a space for women professionals to learn from each other, share knowledge, build leadership skills, and find mentorship. We know women professionals face unique challenges, and through this initiative, we want to give them the right support, guidance, networking opportunities to succeed with confidence. With this, I would like to request CA Palak Porwal to introduce our speaker for today. Hello, everyone. A very good afternoon to one and all. Uh, I would like to introduce our eminent speaker, CA Shraddha Sanghi. She has cleared CA in first attempt in May 13, CFA USA Level 2 cleared May 15. She works with corporates like Idea Cellular and Bluefin India, a USA-based startup, handling everything from MIS and compliance to financial operations and payables, post which she pivoted to her own practice and currently provides tax consultancy, audit and assurance, project finance and compliance, whether it's RERA, insolvency cases, or due diligence. She also mentors and guides aspiring finance professionals, ensuring the next generation understands not just the rules, but the reasoning behind it. She is also an active partner at SASV and Associates, where she just doesn't crunch numbers but helps businesses deal with the challenging financial maze with clarity and precision. I welcome CA Shraddha Sanghi, and thank you so much for coming on our platform and helping us all learn together. Over to you. Good afternoon, good evening, one and all present here. So I'm CA Shraddha Sanghi, and thank you, Palak, for my intro, actually. Okay, so topic for today we are taking is the professional opportunities for CA in the field of RERA. First of all, we will begin with let me share you the PPT. My PPT is being seen by all of you. Any one of you can answer. Sharing the screen right now. Not yet. Okay, the screen is being shared. It's not visible. No, not yet. No. Okay, let me check. Is it visible, right, Ab? No. No. Just a sec. Yeah, it has Yes, started. now Visible visible. is. Yes, Yes, yes. yes. So the topic for today is opportunities for chartered accountants in RERA. So we, as a CA, actually, before starting, I want to quote one of the thing. The RERA Act is being conceptualized and designed by a CA for the CA. So okay, so this in RERA there are n number of opportunities for CA. RERA में होते हैं 10 chapters, 92 sections. सारे के सारे 10 chapters में CA के लिए opportunities है. So we are going to see this all the 10 chapters, all the opportunities which are being connected with RERA in today's session. Starting with the session, before starting with the session, I just want to keep this session interactive. I want you all to be actually अगर आप लोग camera on कर सकते हो तो it's very well and it's very helpful for me. And I would be asking a number of questions in the sessions. So अगर आप interactive रखोगे तो sessions बहुत अच्छा होगा. Correct? Okay. So to begin with our session, so opportunities for CA in RERA. What is RERA first of all?
Anything related to real estate, right? Real estate Regulation Correct. and Development Authority. So D is silent in RERA. Okay. Already I have shared that it RERA में होता है 10 chapters and 92 sections. ठीक है. तो RERA कब आया पिक्चर में? When was the RERA introduced in India? किसने रेरा का ये किया है? पहले किसने रेरा को प्रपोज किया है in India? So my language of conversation would be English. I think so it's being comfortable with all of you, right? Everyone? Is it Yes. comfortable? Okay. Yes. So रेरा कब आया इंडिया में? First of all. 2018. 2018. 2017. Anybody else? Anybody else? 2017. 2017. Okay. Next. Anybody else? No. रेरा इंडिया में आया है on 1st May 2016. It was passed in the parliament in 1st May 2016, in which parliament has given certain amount of time to for all the states to adopt the RERA on the respective date they are comfortable with. So सबसे पहले adopt RERA जिसने किया है, that is the state of Maharashtra. I'm very proud to say I'm from Maharashtra, Nagpur. So RERA सबसे पहले जिसने adopt किया, that is Maharashtra state. And also I want to give you some of the percepts की महारेरा करके बिफोर रेरा एक एक्ट था इन महाराष्ट्र स्टेट इटसेल्फ. तो बेसिकली जो रेरा का पूरा के पूरा परसेप्ट्स है, फ्रॉम चैप्टर्स, फ्रॉम सेक्शंस, फ्रॉम रूल्स, तो ये सारा के सारा कॉपी पेस्ट है फ्रॉम महाराष्ट्र रेरा. सो महारेरा बीइंग जो महाराष्ट्र रेरा जो या रेरा जो सबने एक्सेप्ट किया, दैट वाज ऑन 1st May 2017. बट पार्लियामेंट में एक्ट पास हो चुका था ऑन 1st May 2016 में. ठीक है. सो सबने अपने अपने हिसाब से उसे पास किया. सो बेसिकली okay, here the unregulated era, that was to pre 2016. but रेरा लाने की जरूरत क्या पड़ी सबको? Why was RERA introduced in the country? Anybody? To protect buyers. Yes. Builders were misusing the funds what investors or the buyers used to pay them, and probably वो particular project के लिए पैसा देते हैं, but वो पैसा इधर से दूसरे project में शायद Very use हो good. रहा So होगा. I would say this was due to diversification of fund, right? The buyer used to get the fund for the particular project, but being a developer, he was having 2-3 projects. तो एक project का पैसा दूसरे project में लग रहा था, दूसरे project का पैसा तीसरे project में. No time completion period, क्योंकि पैसा ही नहीं था builder के पास. Hence, particular project का पैसा particular project में लगे, इसीलिए RERA आया है. Anybody else? ये एक reason हो गया. और Hi, Priyanka here. I would also like to add the fact that it is also bringing some reputation to the developers as well. So not all developers are bad, right? Some developers are genuinely category builders. So to give the trust from both the sides. So if you are a fair, transparent dealer or a developer, you give a Maharira number and that creates a lot of confidence and trust within the buyers also. So it's a win-win for both, I think. yeah, so to create the trust amongst the buyer, home buyers, allottees, or the real estate agents, to build the trust among the common consumer, so RERA was introduced to build the trust for like a particular project का पैसा particular project में लग रहा है. दो चीजें हो गई. तीसरा चीज था transparency, right? About the history of the builder is also uploaded on the website. When you are registered in the RERA, the builder has to build up a website regarding that project and has to upload all the history regarding the project, regarding his other projects on that website. So this would build a transparency and trust among the consumers, right? Okay. So pre 2016 में एक कहानी से चालू करते हैं हम लोग, right? क्यों RERA आया? एक
मैं समझ लो एक मिडिल क्लास फैमिली से, मैंने सारे पैसे अपने जमा किए बहुत सालों से काम करके, वॉट एवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड आई वेंट टू अ बिल्डर कि हमें एक इसमें इन्वेस्ट करना है, एक प्लॉट में इन्वेस्ट करना है, रैंडम बिल्डर, राइट? आई हैव नो मतलब उसका कोई बैकग्राउंड मेरे पास नहीं था, उसका कोई बैकग्राउंड चेक मेरे पास नहीं था, उसके कोई फाइनेंशियल्स मैं नहीं देख पा रही थी, बिकॉज आई एम अ कॉमन पर्सन, राइट? आई एम नॉट अ फाइनेंशियल राइट नाउ. अ कॉमन पर्सन who's a middle class person takes all his money, goes to the builder, and he wants some of the investment in बोलते हैं ना सपनों का घर बनाना है हमें, right? So basically मेरे पास कुछ उसका ट्रांसपेरेंसी नहीं था, तो ये एन नंबर ऑफ बिल्डर्स की को सेफ गार्ड करने के लिए, ये एन नंबर्स ऑफ होम बायर्स को सेफ गार्ड करने के लिए रेरा आया है ना, कि हम हमारा जो हार्ड एंड मनी है तो वो हम प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर बिल्डर के पास, प्रॉपर नंबर्स के साथ हम लगाए. दैट इज व्हाई रेरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑन द 1st May 2016. आफ्टरवर्ड्स इन्हें एक टाइमलाइन दिया गया गवर्नमेंट के पास कि हाँ आप लोग आपके हिसाब से इसे इवॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर पर्टिकुलर स्टेट वाइज अडॉप्ट कीजिए. महाराष्ट्र में आया 1st May 2017 में, दैट वाज महारेरा. So when Maharashtra adopted, most of the states came forward, and then now it is currently applicable to 28 states. More than 92,000 registration, 72,000 registered agents are there. More than 1.4 lakhs registered projects are there currently in RERA, and 85% of the compliance rate is being there in RERA. So leading states who are there in RERA are first of all the Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Uttar Pradesh. These are all the forefront states for RERA, like who are active in RERA. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हमारा क्या हुआ, रेरा एनेक्टमेंट हुआ, ट्रांसपेरेंसी आ गई. अब 2018 से रेरा मैचुरेशन फेज चालू हो गया है, जर्नी चालू होगी एक रेरा की, कि जहां हम हर प्रोजेक्ट को रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद वहां के फाइनेंशियल्स देखना, वहां का जो भी एडवाइजरी है वो लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस ऑल थिंग इज बेसिकली रेरा. अंडरस्टूड एवरीवन? तो एक ये शॉर्ट इंट्रो था रेरा का कि व्हाट इज रेरा, व्हाई इट केम इनटू फोर्स, व्हेन इट केम इनटू फोर्स. और डॉक्टर गिरिजा जो एक है, उन्होंने ये रेरा को इंट्रोड्यूस किया, डॉक्टर गिरिजा. फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर गिरिजा ने ही एक पार्लियामेंट में रेरा को इंट्रोड्यूस किया. नाउ वी कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर सीए इन रेरा. सो अपॉर्चुनिटीज एंड सीए इन रेरा हम दो इसमें स्टैब्लिश कर सकते हैं. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, द एक्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एंड कंसेप्चुअलाइज्ड बाय अ सीए फॉर सीए. 10 चैप्टर है रेरा में, 10 की 10 में सीए के लिए काम है. तो मैंने ये काम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. पहले तो एज पर स्कोप ऑफ एरियाज ऑफ वर्किंग, एंड सेकेंडली एज पर द प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ क्लाइंट्स, कि आपके क्लाइंट्स कौन होंगे रेरा के अंडर और क्या क्या उनसे रिलेटेड आप काम कर सकते हो उनके रिलेटेड, वो हमने सेकेंड पार्ट में देखा है. पहला हम पार्ट देखेंगे एज पर द स्कोप एरियाज ऑफ वर्किंग. ठीक है, आगे बढ़ू. सब लोग यहाँ तक क्लियर है? पार्लियामेंट में एक्ट कब पास हो गया था? 2016. एंड महाराष्ट्र में कब पास हुआ? 1st May 2017. महाराष्ट्र adopted it 2017. ठीक है. So this are following of the objectives of RERA. पहले ये देख लीजिए एक स्लाइड. Protect home buyers, ensure accountability, promote transparency and regulate the fund flow. Protect home buyers, like common people जो रहते हैं, जो home buyers है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेरा आया है इन बीइंग. Ensure accountability, to hold all the project developers accountable for all the deeds they have done, good or bad, whatever. ठीक है, तो this is for RERA is for. Third is for promoting the transparency regarding the developers, home buyers or the registered agents, real estate agents. इन सबकी transparency RERA के थ्रू ही आई है. And fourth, regulate the fund flow. मतलब एक
प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में ना लगे, दूसरे प्रोजेक्ट का पैसा तीसरे प्रोजेक्ट में ना लगे, इसीलिए रेरा है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी सीइंग स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क, एक बिल्डर है, उसे एक प्रोजेक्ट बनाना है। सबसे पहले वो क्या करेगा? Everybody is there with me? Take permission. I mean, पहले land खरीदेगा and maybe take permission to build the. एक लैंड खरीदेगा, सीए के पास नहीं आएगा वो पहले, एक्चुअली प्लान बनाना चाहेगा पहले। राइट। तो एक प्लान बनाना चाहेगा, उसके दिमाग में एक आइडिया आएंगी, चलो आज बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी क्या? नहीं, वो क्या करेगा? उसके दिमाग में आइडिया आएगा, वो जाएगा एक सीए के पास, सीए उसे प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देगा, है ना? सो काम दिख रहा है सीए के लिए एवरीवन? अब मेन टॉपिक चालू हो रहा है, प्लीज उठ जाओ सब लोग, एवरीबडी। ठीक है, वो जाएगा एक सीए के पास, सीए उसे हेल्प करेगा एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है कि ये मेरा प्रोजेक्ट मुझे कितने पैसे देगा, कब देगा, कौन से इसमें देगा, कौन से ट्रांस में पैसे आएंगे, कब आएंगे, कितना प्रॉफिट बचेगा। तो ये एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक सीए बना सकता है। एक एडवोकेट बना सकता है क्या? नहीं। एक इंजीनियर बना सकता है क्या? नहीं। एक आर्किटेक्ट बना सकता है क्या? नहीं। तो ये सीधा आएगा एक सीए के पास फॉर प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। जब उसकी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, देन वो क्या करेगा? प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद फंड लेने जाएगा। फंड लेने जाएगा, करेक्ट। तो उसे क्या लगेगा फंड लेने के लिए? बैंक से लोन। नहीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा एक, राइट? प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, राइट? बैंक से लोन उठाएगा, एक लैंड वैंड लेगा, जो भी करेगा, उसके बाद वो प्रोजेक्ट रजिस्टर करने के लिए सीए के पास ही आएगा फिर से। अगर उसे रेरा में प्रोजेक्ट अप्लीकेबल है, रेरा का अप्लीकेबिलिटी पता है क्या सबको? व्हेन इज रेरा अप्लीकेबल फॉर द बिल्डर्स? लाइक आपको बिल्डिंग बनाना है तो आपको कब रेरा रजिस्टर करना जरूरी है? 8 फ्लैट्स से ज्यादा बनाते हैं, 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन रहता है तो रेरा एप्लीकेबल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सो अगर आपका 8 फ्लैट्स या 8 यूनिट्स या 8 अपार्टमेंट से, अगर आप यूनिट्स बोल सकते हैं हम लोग बेसिकली, 8 यूनिट से अगर आपका ज्यादा का बन रहा है वॉट एवर द कंस्ट्रक्शन, एंड सेकेंड और ऑप्शन है कि इफ 8 यूनिट्स है, नहीं 8 यूनिट्स है, अगर सिंगल भी है लेकिन 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का है, तो यू नीड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर मैं एक प्रोजेक्ट ए हूँ, ठीक है, मेरे 4 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, मैं एक बिल्डर ए हूँ, मेरे 4 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल से अभिलाषा 1, अभिलाषा 2, अभिलाषा 3, अभिलाषा 4, ऐसे 4 प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो क्या मैं वो चारों का कंबाइन रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ कि मुझे एक सिंगल यूनिट का प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन अलग से लेना पड़ेगा? आई गेस एक ही लैंड में 4 बन रहे हैं तो एक ही लगेगा, आई गेस। एनीबडी एल्स? I think separate registration for separate unit, because हर एक मतलब बिल्डिंग में फ्लैट का एरिया अलग हो सकता है, तो ऑफ कोर्स अगर एरिया वाइज एप्लीकेबिलिटी देख रहे तो ऑफ कोर्स यूनिट वाइज होगा। करेक्ट है ये। हमें हर यूनिट का या हर प्रोजेक्ट का अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यूनिट का नहीं, सॉरी, हर प्रोजेक्ट का अलग रजिस्ट्रेशन लगेगा। ठीक है, अगर एक ही लैंड में 4 भी प्रोजेक्ट बन रहे हो, लेकिन प्रोजेक्ट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अंडर रेरा। और हर प्रोजेक्ट के इसमें दूसरे प्रोजेक्ट का पूरा की पूरा आपको बताना पड़ेगा कि उसमें कितने प्रॉफिट है, कितना लॉस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अंडर रेरा? पहले तो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, सेकेंडली योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, थर्ड अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, हमें पैसा मिल गया, हमें रजिस्टर करना है अंडर रेरा। Suppose for example, my building is in the area of about
500 स्क्वायर मीटर. सो मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा रेरा में. अगेन आई वुड गो टू CA फॉर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन. ठीक है, तो ये तीन चीज आ गई आपकी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन. इस चीजों के लिए आपका स्कोप रहेगा फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पे रोल प्ले करेंगे. नेक्स्ट, क्वार्टरली एंड एनुअल कंप्लायंस. क्वार्टरली एंड एनुअल कंप्लायंस मतलब फॉर्म 3 फॉर्म 5 सुना है रेरा का? फॉर्म 3 एंड फॉर्म 5 सुना है कि रेरा का? फॉर्म 3 किस लिए रहता है? ओके, सो फॉर्म 3 इज फॉर, अगर आपको विड्रॉ करना है, एक स्पेशलाइज अकाउंट रहता है फॉर लाइक जो भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है उनका एक स्पेशल बैंक अकाउंट खुलता है. वो क्यों खुलता है मैं आगे बताऊंगी आपको. तो अगर उसमें से कुछ भी विड्रॉ करना है आपको, करेक्ट, आपको कुछ भी विड्रॉ करना है तो आपको फॉर्म 3 फिलअप करना पड़ेगा बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर लगेगी आपको. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर्म 5. फॉर्म 5 is the annual return. Okay, form 3 would be quarterly return and form 5 would be the annual return, which is being filed by a chartered accountant only by auditing the firms registered under the RERA, and then they have to submit form 5 to the RERA authority. ओके, तो यहाँ भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल है क्योंकि ऑडिटिंग रोल चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही है. एज फार अभी हमारे कंट्री में फिलहाल ऑडिटिंग रोल किसका है? CAs का. तो CAs को ही आप पूरा ऑडिट करके फॉर्म 5 फाइल करना है. तो फॉर्म 3, फॉर्म 5 और एक क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी फाइल करना पड़ता है बाय द सिग्नेचर ऑफ CA इटसेल्फ. ओके, सो this form 3, form 5 and also the quarterly progress report, this all being done by. तो यहाँ पे भी आपका स्कोप है CA का. ठीक है, पहले तो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन से होती है. प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होने के बाद कंप्लायंसेस जो उसके चालू हो जाते हैं, क्वार्टरली कंप्लायंस, एनुअल कंप्लायंस, उसमें भी CA का रोल है. थर्ड आपका आएगा एस्क्रो अकाउंट मैनेजमेंट. एस्क्रो अकाउंट क्या रहता है? मैंने बोला ना अभी, जब भी प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो जाता है रेरा में, देन द डेवलपर और द प्रमोटर और द बिल्डर, वी कैन से, ये सारे नाम इंटरचेंज होंगे, इसीलिए मैंने और करके अभी बता दिया. डेवलपर, प्रमोटर और द बिल्डर. ठीक है, तो तीनों एक ही चीज है. तो इन तीनों को या तीनों में से इनको नहीं क्या एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ता है. एस्क्रो अकाउंट इन अ पर्टिकुलर बैंक. व्हाई? जैसे पलक ने बोला था कि एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में जाता है, दूसरे प्रोजेक्ट का पैसा तीसरे प्रोजेक्ट में जाता है, ये ना हो. इसीलिए जो प्रोजेक्ट का पैसा होम बायर से या अलॉटी, वी कैन से होम बायर्स और /अलॉटी दोनों एक ही चीज है, उनको इंटरचेंज कर सकते हैं. होम बायर को अलॉटी भी बोल सकते हैं, अलॉटी को होम बायर भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो अलॉटी या होम बायर जो भी उन्हें पैसा देती है, उसका 70%, एटलीस्ट 70% ऑफ द प्रोसीड शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट which is escrow account. ठीक है, और उसका पैसा विदाउट CA सर्टिफिकेशन विड्रॉ नहीं हो सकता. यहाँ तो CA का बिल्कुल रोल है. जैसे हमारी फीस 2-2, 3-3 साल पोस्टपोन्ड होती है कि आज की फीस, ये साल की फीस अगले साल 3 साल बाद डिस्काउंट में मिल रही है. यहाँ तो भाई तुमको पैसा चाहिए तो पहले पैसा रखो, उसके बाद साइन करूंगी. ठीक है, सो escrow account management can also be done by is to be done by a chartered accountant. ठीक है, अगेन एक्ट फॉर द CA बाय द CA. ठीक है, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, एक्ट फॉर द CA बाय द CA. पहला क्या था? प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें क्या 2-3 चीजें देखे हमने. क्या क्या देखा है? एक तो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए. सेकेंड, द क्वार्टरली एंड द एनुअल कंप्लायंसेस दैट नीड्स टू बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट. थर्ड, escrow account management, that is this, that 70% पैसा बायर को बिल्डर को अलग रखना पड़ता है फॉर यूटिलाइजेशन इन द सेम प्रोजेक्ट. एंड जब उसे विड्रॉ करना है escrow अकाउंट से तो उसे CA की सिग्नेचर कंपलसरी है. ठीक है, नेक्स्ट
Everybody is there with me? मुझे Yes. बहुत ही इन इंटरएक्टिव लग रहा है सब चीजें. नहीं, everybody is प्लीज, सॉरी, there. कोई एक जना प्लीज मुझे बता सकता है अभी तक क्या क्या हुआ है अपार्ट फ्रॉम मंजरी और अतिशा वगैरह? कोई और है जो बता सकता है क्या क्या हुआ है अभी तक? हमने क्या क्या पढ़ लिया है या क्या क्या देख लिया? हार्लिन, कैन यू से मी समथिंग? हार्लिन एंड पी झुंझुनवाला एंड एवरीबॉडी. कौन कौन है और? अतिशा, अतिशा कोई और को बोल सकता है? I think Hiral is there, Gitanjali ma'am is there. Hiral, Gitanjali, anybody can please say what has been going on? कौन से 3 चीजों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्कोप है? Can you revise that for me? Ma'am, Yeah. Who is this? this was for where the chartered accountant will be required. One was for the project feasibility report. Yeah. Then for the second is like we can get the project report at the time of funding. Third is during the time of registration of RERA will be required. Yes. Then for your compliances part at the time of quarterly, annually compliances, Form 3, Form 5, Yes. we can do that. Yes. Then for maintenance of that escrow account will be formally for the CA, by the CA. Okay. Thank you so much. So, okay. Yes. Now I'm satisfied that everybody is paying little bit of attention. Okay. So, moving forward, fourth is your representative and authoritative services. What is representative and authoritative services? So, RERA में एक RERA appellate tribunal बनाया है under the RERA Act. You all might be knowing that. Yes? Okay. So, basically RERA ही एक ऐसा act है जिन्होंने specifically mention किया है कि एक CA can represent the home buyers or the developers or whatever customers he is having, whatever client base you would be having. तो CA can represent his client in the court of law. एक रेरा ही ऐसा एक्ट है जिसने स्पेसिफिकली ये बताया है कि CA लिटिगेशन में हिस्सा है. करेक्ट? टिल एपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट में नहीं. ठीक है, टिल एपेलेट ट्रिब्यूनल. तो मुझे एक बात बताइए आप कि रेरा में एक रेरा अथॉरिटी है, रेरा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा, राइट? तो ये अथॉरिटी में कौन कौन आता है? क्या मुझे कोई बता सकता है? रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में कौन कौन आता है? कोई मुझे बता सकता है? सबसे पहले तो क्या मैं दिख रही हूँ सबको? Am I visible to everyone? Atisha, Manjari, anybody? Yes. Am I visible to anyone? Everyone? Yes, your PPT is also visible and you are also visible. Thank you. Okay, so anybody who knows कि रेरा में authorities कौन सी होती है? If anybody is not able to speak, please type in the chat now. Please respond to the speaker. Sorry. I'm saying if anybody is not able to speak, they can type in the chat also. Yeah. Atisha, but I'm not able to see the chat. You please share me whatever the people are typing in the chat, okay? Sure. Harleen ma'am says that she knows. She knows. Okay. So please Yes, type yes. elaborate. Please Hello? put in the chat. It was like she asked me whether she's able to hear, so I said yes. Okay, sorry. Wrong interpretation of chat. Right, sorry. Okay. Anybody else? Anybody is having any idea who are the authorities under the RERA Act? Okay. Let me share with you. RERA is divided into the 3 authorities. First of all, the regulatory authority, real estate regulatory authority. Second one is the adjudicating officer. जो पहला stage है उसका, that are all the regulatory authority.
Next stage is the adjudicating officer, and last but not the least, RERA appellate tribunal. Okay, so the CA can represent his client, and in this all the three, we can say all the three areas, right? Before a regulatory authority, next before the adjudicating officer, and last but not the least under the appellate tribunal. So till appellate tribunal, CA can represent his client under the RERA Act. So this is also a very vast field because RERA is all about litigations, I must say, all about the case studies. जितनी आप केस स्टडीज इसमें स्टडी करोगे उतने आप रेरा में वेलवर्स होते जाओगे. सो केस स्टडीज पे केस स्टडीज, बिकॉज सी ऑल द केसेस अंडर द रेरा, बिकॉज एक्ट में ज्यादा कुछ नहीं है. एक्ट में 10 चैप्टर्स है, हार्डली 92 सेक्शंस है. बेसिकली एक दिन में पढ़ के हो जाएगा, कोई ये नहीं है उसमें. बट इसमें जो केसेस हैं, केस स्टडीज है, because litigations of n number of litigations are there under the RERA Act. Okay, so the litigation is a very vast area for a chartered accountant under the RERA Act. Okay, so moving forward, litigations की हम और बात करेंगे, case studies की हम और बात करेंगे afterwards if the time permits. Next we would be having the area of practice is due diligence, advisory and consultancy. Due diligence report मतलब project feasibility report. कि एक प्रोजेक्ट अगर लिया है, समझ लो मेरे पास एक डेवलपर आया, फॉर एग्जांपल अ बिल्डर, आई कैन से अ डेवलपर, आई कैन से इट एज अ प्रमोटर. ओके, सो मेरे पास एक प्रोजेक्ट लेके एक डेवलपर आया, तो मैं उसके लिए वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना सकती हूँ कि ये प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिट देगा, कितने यूनिट्स बनाएगा, कितने सेल रहेगा, कितना आगे आपको इनकम टैक्स लगेगा, जीएसटी कैसा लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, ये एक साइड से हो गया आपका. नेक्स्ट, अगर आपके पास होम बायर्स आया, होम बायर और द अलॉटी वी कैन से, ठीक है, ये तो सेलर साइड हो गया आपका. बायर साइड से अगर होम बायर आया आपके पास, यू कैन ऑल्सो गिव हिम द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बाय स्टडिंग द बायर, whatever the projects is being going on, is the promoter is strong enough to for the particular project, should the home buyer buy that particular home for his own use, or anybody. So default में क्या होगा? So this all we can provide as an advisory or a consultancy or a due diligence services being a chartered accountant. ठीक है. Next, last but not the least, हमारा जो रोज का काम है, ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज. करेक्ट, हम बने ही उसी के लिए, हमारा इंस्टीट्यूट हमें वही पढ़ा के बड़ा करता है, ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज. सो फॉर्म 5 में ऑलरेडी यू स्टडीड कि एक रेरा प्रमोटर को या बिल्डर को within 6 months from the end of the financial year ऑडिट करवाना जरूरी है, उसके बैलेंस शीट का या फाइनेंशियल्स का या whatever we can say of the escrow account, etc., and he has to give the report under the section form 5, right? So for that given by a chartered accountant. Okay, so all these are the areas, 6 basic major scope for the chartered accountants under the RERA. ठीक है, so एक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या स्कोप है. पहला तो रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन बायर के मन में आया तो वो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए. सेकेंड quarterly and annual compliance. Third, the escrow account management. Okay. Your voice has stopped. Or is it Am I audible now, Atisha? yes. Yes. And am I visible? Is my PPT Yes, visible? Yeah. Yes. Okay. So these are all the scopes for chartered accountant. And so मुझे एक question
Can't hear you. Shraddha, we can't hear you. So, am I not audible to every one of you? Now you are audible. It stopped in between. Okay. So anybody like आया क्या सबको? Everyone, कोई भी आंसर कर दो प्लीज. Can you repeat the question? Your voice actually breaks. Ma'am, your voice is breaking, so we are unable to hear. Shraddha, अगर maybe एक you CA का can drop certification the देना है under RERA for withdrawal Maybe in, you can- from the escrow account. Escrow account you all are knowing now, right? You all are Yes. aware of escrow account, right? अभी मैंने explain किया था आप लोगों को. 70% of the amount, whatever is being received from the home buyers, need to be kept in a separate account, that is the escrow account. ठीक है? अब बिल्डर को escrow account में से पैसे निकालना है for the particular purpose. CA सर्टिफिकेट लगता है उसके लिए. CA सर्टिफिकेशन के लिए CA को सर्टिफाई करने के लिए ये पता होना जरूरी है कि कौन से स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है. हाउ वुड अ CA नो कि कौन से स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है? Based on architect certificate. Yeah. Anybody? How would a CA know? Based on architect certificate. Am I audible? Hello? Yes, Okay, Manjiri, Palak, anybody? How would a CA know कि कौन से stage of completion पे वो project है? is responding Ritisha, that can you help? Harleen Yeah, ma'am you all are mentioned. not audible to me actually. I said based on architect certificate. Is it so? Shraddha, can you hear us, or maybe you can drop or rejoin if there is an issue? Audible, Itisha? Gitanjali ma'am, you are audible. Okay. Shraddha, Am can I you audible? hear us? Please chat box में कोई कुछ बोल दो. हाँ, अब now I can hear you. Ritisha, now we can. Now you are audible. So, Gitanjali ma'am and Harleen ma'am were mentioning that based on architect certificate, they would know. Yes, very correct. So without architect or engineer certificate, a CA could not promote RERA. So architect और आपके engineers ये भी आपके prospective clients हो सकते हैं, right? Because without CA, architect also could not proceed further in RERA, and without architect, a CA could not proceed further in RERA. Okay, so both are required. So this architects or the engineers could also be your prospective clients. ठीक है, मुझे एक एरिया या स्कोप बताना था आपको, इसीलिए आई वाज डिस्कसिंग दिस थिंग. ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज इसमें हमारी रह गई है, दैट वाज डॉक्यूमेंटेशन. राइट, डॉक्यूमेंटेशन क्या, डॉक्यूमेंटेशन कौन से लगते हैं RERA में?
Anybody could like everybody could answer. बहुत सारे documentation लगते हैं in RERA. So how could a CA help? What kind of documentation is being prepared by a CA under RERA? This is my question basically. Project report he was preparing, feasibility report, Right. written certificate. Project feasibility report already being spoken of, right? Next. The forms that he was filling. I think form 5, right? But that is not the part of documentation, Atisha. They are the forms. That is like legal part. That is not documentation part. That are the Okay. statutory parts. So I need a documentation. What kind of documentations are being prepared in RERA? First of all, you all might be knowing, right? Documentation बहुत जरूरी है. एक कागजात, एक घर खरीदने के लिए कागजात जरूरी है. Right, everyone? Everyone is with me, right? Yes. हाँ, कागजात बहुत जरूरी है घर खरीदने के लिए. What kind of कागजात are जरूरी? अब इतना मैंने बोल दिया है, अब तो I guess everybody is knowing the answer, I guess. Agreement for sale. Sorry? Agreement for sale. Agreement to sale, correct. A CA is very useful and very clear and precise in drafting the agreement to sale, right? We can provide that services also to our client. Or महाराष्ट्र में ना एक क्या बोलते तो एक प्रथा है सोसाइटी बनाने की. बिफोर डेवलपिंग एनीथिंग सोसाइटी बनाते हैं. एक सोसाइटी बना के फिर हम अपार्टमेंट्स खड़े करते हैं, राइट? टू ड्राफ्ट द सोसाइटी रिपोर्ट, जॉइंट डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ सोसाइटी, प्रमोटर एंड होम अलॉटीज, ये सब डॉक्यूमेंट्स सीए बनाता है, राइट? सोसाइटी बनाना, सोसाइटी के पूरे क्या बोलते हैं जॉइंट डॉक्यूमेंट्स बनाना, सेल डीड बनाना, सेल डीड का क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, टू प्रिवेंट हिज क्लाइंट्स फ्रॉम द डिफॉल्ट, राइट? ये सब क्लॉजेस कौन ऐड करता है? एक सीए ऐड करता है. सो दिस इज ऑल्सो स्कोप फॉर अ सीए. Everybody is clear till here? So documentation भी बहुत important part है. That is also very useful thing, and hence this is also a very great area, good area of practice for the CA under RERA. Okay. Okay. My PPT is visible to all of you? No. Okay. So next up, एक साइड हमने ले लिया कि स्कोप ऑफ वर्क या स्कोप ऑफ एरिया से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है सीए के लिए, वो हमने ले लिया, राइट? ऑडिटिंग, अश्योरेंस, फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट साइड इज प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स. आप मुझे बताइए पहले कि हु आर द स्टेक होल्डर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड अंडर रेरा. कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं जो रेरा में इन्वॉल्व होते हैं? एक जना एक बताइए प्लीज. बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है क्योंकि everybody should get a chance and everybody is like Builder, the stakeholder, Shraddha. Sorry? Builder, the one who is making the apartments. So what are they called as? One who is making the apartment? Promoters. Promoters, very good. So promoters or the co-promoters. Okay. So this both are Then developer. Next. Developer. Sorry. The stakeholders could be promoters, developers, the landholder. All this could be the stakeholders in case of RERA. Stakeholders, there are n number of stakeholders, Neha, in RERA. So I am asking कि आपने promoter बता दिया. Next, Harleen. Yeah. Okay. The buyer, home buyers. Home buyers, second, yes.
Then there are many people attached with the product, like architects are there, and then They are not the renting stakeholders. They are not the stakeholders. They are the professionals. The chartered Real accountants, estate agents. the engineers, they are the professionals. They are not the stakeholders in RERA. Real estate Buyers agents. will be the Real stakeholders. estate agents. Okay, so we got the 4 promoters, co-promoters. We can have the home buyers, and next is the real estate agents. Next. Anybody else? Banks, Anybody else wants banks to or financial institutions who has given the money for this Loans. yeah, project. like the Right, bankers, right. we can say, right? Gitanjali, Yes. the bankers. Yes. Yeah, okay, the 5 Lotties or buyers. already being done. Already Okay. Harleen Tan has shared that. ओके तो मैंने अभी बताया एक महाराष्ट्र में प्रथा है सोसाइटी बनाने की, राइट? तो सोसाइटी एज अ लैंड ओनर, अगर सोसाइटी के पास लैंड है तो वो भी एक स्टेक होल्डर हो गई, करेक्ट एवरीवन? ठीक है. नेक्स्ट, इन्वेस्टर. अगर सिर्फ एक इन्वेस्टर है, दे आर नॉट द होम बायर्स. दोज हु नीड द एग्जिट प्लान्स along with the promoter, they are just the investors in the real estate project, so they are also stakeholder, right? Next, the mortgager in the real estate, they are also stakeholder. Mortgagers जो रहते हैं, those who land monetization आपको पता होगा, right? land monetization पता है कि सबको यहाँ पे? What is land monetization or what is the land monetization concept, कुछ पता है क्या किसी को? No, ma'am. No. Shweta, can you brief that? Sorry? Can you brief that? What is land monetization? Sorry, Neha, I'm not able to hear you properly. Yeah, I'm saying that I would need some knowledge on the land monetization. Can you brief that? Land monetization is that कि अगर गवर्नमेंट के पास कोई लैंड है, करेक्ट, उसे कोई प्राइवेट पार्टनरशिप में ट्रांसफर करना है, तो पीपीपी बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं लैंड मोनेटाइजेशन. ठीक है. पीपीपी जो रहता है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो लीज पे दे देते हैं लैंड फॉर 90 years, 100 years, लीज पे देते हैं, बट दे आर नॉट सेलिंग इट. That is known as land monetization. Okay, always the government or the public sector units are being involved in this. One part is that, one party is the person who is taking the particular land on lease. So that is the concept of land monetization. Okay, so तो जो आपके mortgagers हैं या land monetized वाले जो है वो सारे इन्वॉल्व रहते हैं एज अ स्टेक होल्डर हियर, करेक्ट. कोई प्रमोटर एक लीज पे लैंड लेके उस पर डेवलप करके, दैट इज ऑल्सो बीइंग डन बाय द प्रमोटर, तो वो सारे इन्वॉल्व रहेंगे लैंड मोनेटाइजेशन या मॉर्गेजर, व्हाटएवर यू कैन से. फिर प्रोजेक्ट फाइनेंसर अगर कोई है तो वो सब रहेगा. और कॉन्ट्रैक्टर अगर रहा तो कोई बिल्डर ने कोई कॉन्ट्रैक्टर को एज अ बार्टर एग्रीमेंट अगर दिया है कि आप ये पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाइए और 2 फ्लैट आप रखिए, तो दैट ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व एज अ स्टेक होल्डर इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ठीक है. तो बेसिकली आपके पास 10 टाइप के स्टेक होल्डर्स है. ठीक है. द प्रमोटर्स, वी कैन ऑल्सो हैव अ को प्रमोटर, लैंड ओनर्स, देन सोसाइटी एज अ लैंड ओनर्स. अगर प्रमोटर से लैंड ओनर्स अलग रहा तो अगर लैंड प्रमोटर के पास नहीं है, जो एक आइडिया वाला पर्सन दूसरा है और लैंड वाला पर्सन तीसरा है, तो ये लैंड ओनर्स और प्रमोटर्स को अलग अलग कर देता है. एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ है. Okay. The promoters, co-promoters, landowners, society as landowners. Society एक build करते हैं Societies Act में, and then they are being society is being treated as a landowner. That is तो
indirectly society becomes the stakeholders. Next is investors in real estate. He is not a home buyer, he is just an investor. ठीक है, बड़े बड़े जो investors रहते हैं, तो he is also stakeholder. Real estate agents जिन्हें register करना पड़ता है under the RERA Act. For agent किस purpose के लिए रहते हैं? For selling or for connecting the buyers, etc., right? Next, mortgage lenders, we can say land monetization वाला concept भी आ जाता है यहाँ पे कि एक land monetize किया है, उसको लीज पे लिया है from the government and then building खड़ी करी है, तो he is a particular person who becomes the stakeholder in the particular project. Next is project financiers, we can say bankers here, / bankers. Next is the contractor, the builder person whom the barter system is being whose contract is of the barter system कि अब मैं पूरा प्रोजेक्ट खड़ा करूंगा, मैं पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करूंगा, बट मेरे पास 2-3 फ्लैट उसमें के रहेंगे. So he indirectly becomes the stakeholders here. Last but not the least, the allottees. Allottees is the home buyers, also we can say in a general language. So this all are the prospective clients अंडर योर रेरा. ठीक है, अब ये प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये तो बहुत इजी है यार. प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ये तो आप लोग ही मुझे बता सकते हो फटफट. सबसे ज्यादा किस पे रहता है ओनर्स की रजिस्टर करना या अप्लायंसेस करना? प्रमोटर पे या को प्रमोटर पे, राइट? For registering the project, for complying with the project RERA regulations, right? तो सबसे पहला आपका जो क्लाइंट रहेगा, he would always be a promoter or a co-promoter. अब एक प्रमोटर को क्या क्या सर्विसेज लगती है? प्रमोटर को लगता है आपका okay. So here the promoters can have come to a chartered accountant and say RERA project registration. पहले तो feasibility report बनवाएगा, फिर RERA registration के लिए जाएगा, तो उसे फिर से chartered accountant की सर्विस लगेगी, फिर रिटर्न्स फाइल करने के लिए लगेगा, फॉर्म 3, फॉर्म 5, एक्सेट्रा. एस्क्रो अकाउंट से जो पैसा निकालना है उसके सर्टिफिकेशन के लिए लगेगा. फंड फ्लो मैनेजमेंट, वही 70% वाला जो रूल है उसके लिए लगेगा. फिर फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, आगे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या बनना चाहिए, आगे का बैलेंस शीट कैसे दिखनी चाहिए, एक्सेट्रा, राइट? ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट फॉर जॉइंट वेंचर्स, अगर कुछ जॉइंट वेंचर्स है तो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट करना है कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद है, सामने वाले पार्टी के लिए कितना नुकसान है, कितना आपको प्रॉफिट होगा, इसमें कितना बचेगा, all this. And regulatory and advisory services and compliance consulting also. ठीक है, तो आपको क्या लगता है, अगर आपको रेरा में प्रैक्टिस करना है तो आपको ये सब जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आपको रेरा में प्रैक्टिस करनी है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको पूरी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस आनी ही चाहिए, राइट फ्रॉम टीडीएस, right from GST, right from income tax, right from project financing. Okay, everybody is with me, right? तो ये सब आने के बाद ही आप लोग रेरा प्रैक्टिस चालू कर सकते हो बेसिकली. ठीक है, सो प्रमोटर वुड बी योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लाइंट. सबसे ज्यादा ओनर्स प्रमोटर के ऊपर ही रहता है फॉर कंप्लायंसेस, एंड देन ही वुड बी टेकिंग n नंबर ऑफ सर्विसेज फ्रॉम यू. तो एक प्रमोटर को आपको कैसे प्रोक्योर करना है, दैट यू आर ऑल्सो मतलब यू नीड टू फिगर आउट दैट. ठीक है, नेक्स्ट, लैंड ओनर्स एंड सोसाइटीज. ठीक है, लैंड ओनर्स एंड सोसाइटी एज अ लैंड ओनर. ठीक है, ये दोनों चीजें हम साथ में देख लेंगे कि इन्हें क्या क्या लगता है. पहले तो सोसाइटी बनाने के लिए आपको एक सोसाइटी बनाने के लिए सीए लगेगा, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज, राइट? वो एक सर्विसेज आ जाएगी आपकी उसमें. फिर लैंड ओनर्स अगर है तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैसे करना है बिटवीन द बिल्डर एंड द लैंड ओनर्स, ये आपको देखना पड़ेगा. रेवेन्यू शेयरिंग कैसा होना चाहिए दोनों के बीच में, रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, क्या फिजिबिलिटी है रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म की, ये देखना पड़ेगा आपको उसमें. थर्ड,
द रेरा कंप्लायंस फॉर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या रहते हैं? ओल्ड बिल्डिंग को तोड़ के जो नया बनाते हैं, दैट इज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो रेरा कंप्लायंसेस फॉर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कितना होना चाहिए? फाइनेंशियल ओवरसाइट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन की क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, कैसा बन रहा है बिल्डिंग, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके भी सर्विसेज फ्रॉम सीए ले सकते हैं। टैक्स प्लानिंग, वो तो हम वैसे भी देते ही है, टैक्स प्लानिंग सर्विसेज, जीएसटी सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो एवरीडे आपको देना ही है रूटीन में भी। और ये भी आपके अगर क्लाइंट्स बनते हैं तो इन्हें ये सर्विस जरूर लगेंगी, फ्रॉम टैक्स प्लानिंग, फ्रॉम टीडीएस, फ्रॉम जीएसटी, एवरीथिंग। Okay, so basically you should be well versed in all the like all the areas of income tax and GST, then only you can be a CA to a RERA person. ठीक है। नेक्स्ट, सोसाइटी स्पेसिफिक रेगुलेटरी फाइलिंग्स जो भी रहेंगी सोसाइटी की, बैलेंस शीट कब फाइल करना, क्या करना, कैसा करना, उनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना, उनके मेंबर्स का भरना, ये सब चीजें इसमें ऐड ऑन होती जाएगी। नेक्स्ट, मेंबर्स कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। मेंबर्स अगर बीच में कोई मेंबर ने आपको पूछ लिया कुछ उठा के, या कोई मेंबर आपको अपॉइंट करता है फॉर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, तो दैट इज ऑल्सो अ सर्विस वी कुड गिव एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो दो चीजें हमने, दो लोग देख लिए प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। पहला तो प्रमोटर्स एंड को प्रमोटर्स, उनको किस टाइप की सर्विसेज लगेंगी। नेक्स्ट, लैंड ओनर्स एंड सोसाइटी एज अ लैंड ओनर, उन्हें किस टाइप की सर्विसेज लगेगी। सब में एक चीज तो कॉमन रहेंगी, दैट इज योर आइडियाज एंड जीएसटी एंड टीडीएस रिटर्न्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक चीज तो सब में कॉमन रहेगी। एंड देन स्पेसिफिक क्लाइंट्स को, जैसे सोसाइटी को अगर सोसाइटी फॉर्मेशन का, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट फॉर्मेशन का, ये सब चीजें लगती रहेगी। सो दिस आर बेसिकली द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना, या प्रमोटर के लिए क्या बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल, या मतलब जो भी एन नंबर ऑफ थिंग्स ड्राफ्ट करना, ये सब डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज भी रहती है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर थर्ड prospective client is your investors and the financiers. तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जिन्हें सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रेरा, मतलब रेरा में आते हैं वो, या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। दे आर नॉट ऑफ द, उन्हें कोई ये नहीं है कि उनका एक घर होना चाहिए, उन्हें कुछ ऐसा नहीं है, उन्हें सिर्फ एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, हेंस उन्होंने वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टर्स को बेसिकली क्या लगेगा? एक एग्जिट प्लान लगेगा। तो एग्जिट प्लान हम सीए से अच्छा कोई नहीं बना सकता है। एग्री? अग्री एवरीवन? एवरीबॉडी इज अग्रीइंग विथ मी दैट एक एग्जिट प्लान अगर बनाना है किसी के लिए भी फॉर टैक्स प्लानिंग के हिसाब से, तो हम सीए से अच्छा कोई बना सकता है क्या? नहीं। तो एग्जिट प्लान बनाने के लिए बेसिकली फाइनेंसर्स को अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है तो सीए, एडवोकेट उतना अच्छा बना के शायद ना दे, तो एक सीए ही काम आते हैं ये सब चीजों के लिए, राइट। सो इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंसर्स के लिए आपको क्या क्या सर्विसेज देना है? एक तो रेरा ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स, वो हर एक में रहेगा। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स हर एक क्लाइंट में, जो भी रेरा से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स है, जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स बनते हैं, हर एक को ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट लगेगा, हर एक को आपका इनकम टैक्स और जीएसटी का लगेगा, हर एक को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे रिगार्डिंग देयर नेचर, राइट। एक प्रोजेक्ट वायबिलिटी एनालिसिस रिपोर्ट लगेगा, इन्वेस्टमेंट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट लगेगा किसी को, एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स में। ये सब रिपोर्ट्स के नाम बता रही हूँ आपको, ये सारी रिपोर्ट्स बनती है रेरा में, और ये सब रिपोर्ट्स आप बना सकते हो। ठीक है। देन फाइनेंशियल हेल्थ एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपर्स, कि क्या डेवलपर्स कैसे करते हैं, क्या क्या हेल्थ इवैल्यूएट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग, एग्जिट करना है अगर कोई इन्वेस्टर को, कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो गया, प्रॉफिट कमा लिया, अब एग्जिट चाहिए भाई, तो वो सब स्ट्रेटेजी प्लानिंग आप एक सीए कर सकता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एडवाइजरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल्सो कैन बी डन बाय अ सीए। ठीक है। नेक्स्ट, रियल एस्टेट एजेंट्स। अब ये कौन होते हैं भाई? रियल एस्टेट एजेंट्स कौन होते हैं? थोड़ा सा क्रक्स तो मैंने बताया था, बट कोई मुझे बता सकता है कि रियल एस्टेट एजेंट्स कौन होते हैं? एक छोटे से कोई दो लाइनर चीज, कुछ कोई भी। रियल एस्टेट एजेंट्स कौन होते हैं?
brokers who are helping in buying and selling of those houses. Correct. So those are helping in buying and selling of the project from promoters, co-promoters. ठीक है? So real estate agents, do they need to register on the website under RERA? Yes, the real Yes. estate agents need to register. Sorry. I'm saying yes. I think you are asking question. Do they need to register? So I'm saying yes. Yeah, okay. So they need to register under the RERA Act. और महारेरा में तो रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए एग्जाम्स भी है. They need to clear that exam and then they need to register as a real estate agents. Okay. So real estate agents अगर आपके क्लाइंट होते हैं तो उन्हें किस टाइप की सर्विसेज लगेंगी? रियल एस्टेट एजेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई हम तुम्हारा प्रोजेक्ट रजिस्टर करवा के देते हैं. वो रजिस्टर खुद तो नहीं करेगा, हमारे पास ही आएगा, राइट? तो रेरा रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं. फिर रिन्यूअल और कंप्लायंस मैनेजमेंट अगर कुछ रहा, वो उसने पूरा के पूरा प्रोजेक्ट अगर बिल्डर से उठाया और रियल एस्टेट एजेंट जैसा काम कर रहा है, तो सारी की सारी सर्विसेज जो प्रमोटर की है वो उसे भी लगेगी, राइट? रिकॉर्ड स्किपिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, कमीशन स्ट्रक्चर एडवाइजरी की क्या बेसिस पे कमीशन चार्ज करना चाहिए, कितना चार्ज करना चाहिए, उसका आगे टैक्स में क्या इफेक्ट होगा, जीएसटी में क्या इफेक्ट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? So this all can be done by a chartered accountant. Last but not the least, contractors and the allottees. Contractor कौन रहते हैं? Builders, we can say. जो कॉन्ट्रैक्ट पे ठेकेदार बोलते हैं ना हम लोग. समझ में आ रहा है कि सबको? Okay. So जो ठेकेदार या builders या contractors we can say, right? The person who is actually building the building, who is actually making the project, right? तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं. तो कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर हम बार्टर सिस्टम में दे फ्लैट, अगर कोई प्रमोटर ने बार्टर सिस्टम में कॉन्ट्रैक्टर को फ्लैट दिया है कि भाई तू ये पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दे, 3 फ्लैट तेरे, तो तब उसे वो लगेगा कि हाँ इसके कैपिटल गेन कैसा आएगा, किस चीज में हमने कितना चार्ज करना चाहिए, कितनी फीस रहेंगी, कितना प्रॉफिट रखना चाहिए, क्या प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, कितना कैसा करना चाहिए, in GST, how would be the implications, etc., 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 all the tax planning things, right? So basically, contractors और allottees को क्या क्या सर्विसेज लगेंगी कि मैंने ये पर्टिकुलर प्रमोटर से खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, इसके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये अच्छा प्रमोटर है कि नहीं है, राइट? है ना? ये सारी सर्विसेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड कर सकता है टू allottees और टू द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल्सो. तो कॉन्ट्रैक्टर को कंप्लायंस मॉनिटरिंग, एक तो कि कंप्लायंसेस बरोबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रमोटर अंडर द रेरा एक्ट. फिर क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क, क्योंकि रेरा में तो अगर कुछ भी करे प्रमोटर तो वो सीधा सीधा वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है. वी नीड टू जस्ट गो एंड चेक द वेबसाइट एंड देन गिव द रिपोर्ट. ठीक है. बट अगर उसमें समझ में ऐसा लिखा रहता है कि ये बिल्डर ने फॉर्म 5 फाइल नहीं किया, लेकिन कॉमन पर्सन को समझ में नहीं आएगा कि फॉर्म 5 होता क्या है, हेंस दे गो टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट. अदरवाइज वेबसाइट पे तो अपलोडेड है कि फॉर्म 5 फाइल नहीं किया है भाई ये बिल्डर ने, राइट? बट फॉर्म 5 होता क्या है कॉमन पर्सन को पता ही नहीं है. तो हेंस दे कम टू चार्टर्ड अकाउंटेंट. हमें पता है कि फॉर्म 5 क्या होता है, हाँ भाई एनुअल रिटर्न है, नहीं फाइल किया इसने, देख लो क्या करना है, हम वो बता सकते हैं उन्हें. Correct? So hence we are playing a very important role in RERA field, right? तो quality assurance framework, अगर क्वालिटी है कि नहीं है इसके प्रोडक्ट में, कहीं से कंप्लेंट आ रही है क्या. अभी पता है आपको रेरा में आफ्टर सेल सर्विसेज का भी एक क्लॉज है. आप लोगों को पता है कि ये बात कि रेरा में आफ्टर सेल सर्विसेज का भी एक क्लॉज है कि अगर 5 साल तक तुम्हारे बिल्डिंग को कुछ भी या तुम्हारे घर को कुछ भी होता है तो बिल्डर उसका मतलब whatever repairing or like refund whatever, the builder is liable to do that till 5 years. तो 5 साल की वारंटी दे रहे हैं आपको बेसिकली ऑन द फ्लैट अंडर द रेरा एक्ट. ठीक है. सो दिस ऑल थिंग्स. फिर नेक्स्ट इज योर ग्रीवेंस रिड्रेसल सपोर्ट. अगर ग्रीवेंस आया तो क्या है उसका, कैसे करना है, फाइल कैसे करना है, कंप्लेन कहाँ जाना है, कौन से अथॉरिटी के पास जाना है, कहाँ हमें हमारे ग्रीवेंस का मिलेगा, कुछ मिलेगा, हल मिलेगा, व्हाटएवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस ऑल आर बीइंग डन बाय द CA also, right?
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एडवाइजरी, क्या आपके राइट्स है, क्या आपके ऑब्लिगेशंस है, कि आपको 5 साल तक वारंटी है, ये अलॉटीज को पता ही नहीं रहता है, राइट। इन एग्रीमेंट ऑफ सेल में आजकल मेंशन करना जरूरी है ये बात अंडर रेरा, बट अलॉटी पढ़ता नहीं है ना, अलॉटी को समझ में भी नहीं आता है वो लैंग्वेज। तो हम सीए है, हम उसको क्या बोलते, तो कोर्ट क्रैक करके देते हैं, वो एग्रीमेंट टू सेल क्रैक करके देते हैं और उसे समझाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। तो हम एज अ सीए ये हमारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। Next is your documentation and legal compliances. Whatever documentations or the legal compliances, what kind of legal compliances are compulsory, etc., etc., etc. Documentation हमने already देख लिया, बहुत सारी documentation CA provide कर सकता है under the RARE Act. So these are all the prospective clients, and what are the services you could like give them? What are the services you could provide them under the RARE Act? सो हमने 2 टाइप से अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देखे हैं। पहला तो स्कोप ऑफ वर्क की डॉक्यूमेंटेशन होना, या ड्यू डिलिजेंस, या प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, व्हाटएवर वी कैन से एनुअल और क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से। और नेक्स्ट आपने देखा अपॉर्चुनिटीज ऑफ द रिगार्ड बाय प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, हु कुड बी योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, व्हाट आर द सर्विसेज नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। आपके 2 टाइप से आपने रेरा देख लिया। अब की सर्टिफिकेशंस रेरा के अंदर बेसिकली 2 चीज के होते हैं, जहां ये होना ही होना, ये कोई और नहीं कर सकता। दैट इज योर फॉर्म 3 एंड फॉर्म 5। फॉर्म 3 क्या रहता है? फॉर्म 3 आपका जो है, पहले तो फॉर्म 3 होता क्या है? कोई और बता सकता है कि मुझे फॉर्म 3 क्या होता है? बता सकता है? सिर्फ मुझे और 10 मिनट्स चाहिए, देन आई वुड बी वाइंडिंग अप। इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू, और शुड आई वाइंड अप नाउ? Hello everyone. We can do it into next 5-7 minutes, no? Okay, fine. So what are the like who are the like what is form 3? I've already explained to you. Please just revise it. What is form 3? कोई बोल सकता है? It's about the project details. मतलब कि कितना खर्चा हुआ, कितना बाकी है, कितना बजटेड था, वैसे कुछ। नहीं, फॉर्म 3 सर्टिफिकेशन में है कि जो 70% आपके एस्क्रो अकाउंट में है, वो आप कितना यूटिलाइज हुआ, कितना बचा है, कितना रह गया, तो ये क्वार्टरली आपको फॉर्म 3 सबमिट करना पड़ता है अंडर द सिग्नेचर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, कैसे करना है वो नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्म 5 आता है, दैट इज योर एनुअल की ऑफ फॉर्म 5। वी आर गोइंग टू सी फॉर्म 3। फॉर्म 3 में आपको बेसिकली क्या क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई करना है कि वो क्लोजिंग से आया कि नहीं आया, आपकी रिसिप्ट्स कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर, परमिसिबल विड्रॉवल के लिए पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है 70% वाला रूल का, कि जो भी पैसा आपका होम बायर्स या अलॉटीज या जो भी आपको पे कर रहे हैं, उसका एटलीस्ट 70% आपका हिस्सा एस्क्रो अकाउंट में रहेगा, बाकी 30% you could be using. Escrow account is a separate account in a bank. ठीक है, सो ये कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ, बेसिकली ये सब आपका was I not audible to you, all of you? क्या मेरा वो चला वीडियो चला गया था? एवरीवन दिख रहा है। क्योंकि आवाज ब्रेक हुई थी। समझ में आ गया सबको क्या रहता है क्लोजिंग बैलेंस का? फिर आपको सर्टिफाई करना है कि यस दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस एंड इट इज वेरी करेक्ट। तो ये आपको सर्टिफाई करना है बीइंग अ प्रोफेशनल। मैंने एक यहाँ पे एक छोटी सी प्रोफेशनल टिप भी डाली है कि आपको क्या करना है। अरे सो दिस इज कि आपको एक तो पहले वर्किंग पेपर्स पूरे के पूरे आपको चेक करने हैं। सपोर्टिंग कोई भी चेक किए बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है, राइट?
क्योंकि आपको यहाँ पे अगर कहीं भी है तो पेनल्टीज आपके लिए भी है एक्ट में। ऐसा नहीं है कि यहाँ सीए है तो आप सब चीजों से ये पेनल्टीज आपके लिए भी एक्ट में है। तो यू नीड टू बी प्रोफेशनली इंटेलिजेंट व्हाइल डीलिंग द रेरा कंप्लायंसेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फॉर्म 5। फॉर्म 5 किस चीज के लिए यूज होता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आपका देना है, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है फॉर्म 5 देना, राइट। डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट देना है इसमें आपको, और आपको ये सब चीजें उसमें देना है। हेंस दिस आर ऑल द फॉर्म 5 कंप्लायंसेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका फंड फ्लो मैनेजमेंट और 70% रूल जो हमने पढ़ा है कि 70% आपका एस्क्रो अकाउंट में जाना चाहिए, 30% आपका रिटेन अदर अकाउंट में, और 100% सेग्रीगेशन होना चाहिए ईच प्रोजेक्ट वाइज। हर प्रोजेक्ट का अलग एस्क्रो अकाउंट खुलेगा, हर प्रोजेक्ट का अलग से फंड सेग्रीगेट होगा। ठीक है, सो 70% में परमिसेबल यूजेस क्या क्या है ये हमें मैं बताना चाहती हूँ आपको। लैंड एक्विजिशन के लिए यूज कर सकते हैं, रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर आर्किटेक्चर की फीस, साइट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स एंड परमिशंस। ये सब चीजों के लिए आप 70% में से यूज कर सकते हो। नॉन परमिसेबल क्या क्या है? अगर आपको मार्केटिंग करना है, एडवर्टाइजिंग करना है ऑफ योर बिल्डिंग, ऑफ योर प्रोजेक्ट, ओवरहेड कुछ करने हैं उसमें से, चाय पानी नाश्ता कॉफी, ये नहीं चलेगा। इंटरेस्ट अगर आपको देना है अनलेस द कंस्ट्रक्शन इज नॉट अंडरगोइंग, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। डिविडेंड पेमेंट्स और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको करना नहीं, नो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर कुछ भी करते हो तो नहीं चलेगा। ठीक है, सो दिस आर ऑल द नॉन परमिसेबल एक्सपेंसेस विच आर मतलब विच इज बीइंग डिफाइंड इन रेरा। ठीक है, रेरा प्रैक्टिस के लिए आपको क्या क्या स्किल्स लगेंगे? रेरा प्रैक्टिस के लिए जो भी स्किल्स लगेंगे, मतलब हियर इज इन पीपीटी आई हैव मेंशन्ड अ स्मॉल थिंग। बस मुझे एक चीज यहाँ पे जरूर बोलना है, बीइंग अ प्रोफेशनल टू अनदर प्रोफेशनल्स, कि रेरा एक्ट इज मतलब वी नीड टू स्टे थरो फॉर रेरा एक्ट, बट यस केस स्टडीज बहुत ज्यादा कंपलसरी है रेरा में देखना, बिकॉज ईच इशू इट्स जजमेंट, बिकॉज ईच होम बायर इज डिफरेंट, राइट। सो each judgment or the each issue would be very different, कि जो एक्ट में नहीं, कभी कभी वो चीज केस स्टडीज में क्लियर हो जाती है, राइट। कि एक समझ लो प्रॉपर्टी फैमिली ओन प्रॉपर्टी है, फिर उसका कैसे हुआ जजमेंट, ये सब चीजें रेरा में आती रहती है। हेंस केस स्टडीज बहुत ज्यादा जरूरी है। वी नीड टू फोकस ऑन केस स्टडीज व्हाइल डूइंग अ रेरा प्रैक्टिस। जितना केस स्टडी पढ़ोगे उतना आपको इन डेप्थ नॉलेज आएगा, उतना आप रेरा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। हाउ टू स्टार्ट अ प्रैक्टिस इन रेरा? हाउ टू स्टार्ट, पहले तो रेरा की प्रैक्टिस ऐसे ही नहीं मिलती है, राइट। हमें जाके पहले तो नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क बिल्ड करने के बाद हमें हमारा नॉलेज इतना थरो रखना है कि वो जब नेटवर्क से हम मिले तो हम हमारा नॉलेज ऐसा शेयर करें कि वो हमारे पास ढूंढते हुए आए, राइट। अगर आप किसी को आज बताओगे तो शायद वो आपके पास 3 साल बाद भी आपके पास लौट के आना चाहिए। हेंस अगर आज आपको 3 साल बाद रेरा प्रैक्टिस चालू करना है, आपको बीज आज से बोने हैं रेरा के। So this is basically the major important points being a professional we should keep in mind, not only for RERA. I think so this is applicable for every kind of practice. Being a chartered accountant, you are for like you want in future, like आपको कोई अगर specialized practice करना है आगे future में जाके, बीज आज से बुने से, you need to plant your seedlings right from now. Okay, next, टेक्निकल एक्सपर्टाइज होना चाहिए, कि डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि होम बायर्स क्या है, कारपेट एरियाज क्या है, पिन एरियाज क्या है, फ्लिंथ क्या है, राइट। फ्लिंथ, पिन एरियाज, कारपेट एरिया क्या रहता है कंसेप्ट, राइट। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। किस चीज में कॉमन एरियाज क्या रहती है डिफाइंड। आप अगर एग्रीमेंट तो कि हर एक चीज आपको समझनी चाहिए, देन ओनली यू आर वेल वर्स्ड इन रेरा। ठीक है, so you should have a deep RERA understanding.
रियल एस्टेट जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, लाइक फॉर प्रोजेक्ट मेकिंग द फाइनेंस रिपोर्ट, MIS, ये सब में आप वेल वर्स होना चाहिए कि हाँ इतना प्रॉफिट दिख रहा है, इसको इतना कम करेंगे, कैपिटल कैसे एडजस्ट करना, वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस ऑल्सो यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड। फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू बहुत बारकाई से जो एक वुमेन कर सकती है, आई गेस। सो रेरा इज बेसिकली could be a very boon for a women, because यहाँ पे जो एक बहुत ही बारकाई से चीजें देखनी पड़ती है इन द डॉक्यूमेंट्स, वो एक वुमेन देख सकती है। व्हाट आई फील बीइंग अ वुमेन प्रोफेशनल, नॉट any bias to any males and no offense to any males, okay. So, and last but not the least, audit and assurance techniques आपको सारी आना चाहिए, like from vouchers, कि उसका vouchers देख के समझना चाहिए कि how it is being made, from where it is being originated, how it is being utilized, and कैसे कैसे ये सब vouchers, audit and assurance techniques आप लोगों को thorough होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर रेरा की प्रैक्टिस चालू करना है तो you need to be well versed in income tax also, you need to be well versed in GST also, you need to be well versed in your finance part also, like from preparing the MIS report, project report, etc etc। जब आप n number of project report and MIS reports prepare कर लोगे, then you can think of being in, like, do a RERA thing, ठीक है। फिर सॉफ्ट स्किल्स आपके होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्यूमेन होना चाहिए कि how you are talking, to whom you are talking, to RERA officials, to the allottees, to the like the project managers or etc etc, or the promoters or the co-promoters, किस लेवल के पर्सन है, कैसे बात करनी है, कहाँ कैसे नेटवर्किंग कहाँ करना है, राइट। सो दिस ऑल्सो थिंग शुड बी कीपिंग इट। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स एन आएंगी आपको रेरा प्रैक्टिस में, एन प्रॉब्लम्स आती है। हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दैट इज द चैलेंज इन रेरा। लाइक टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे एडिक्वेटली मैनेज करना है आपको टाइम को, ठीक है। सो दैट्स ऑल द अदर थिंग्स। देन क्यों वुमेन्स ने रेरा लेना चाहिए, ये बेसिकली एक स्लाइड मुझे बस शेयर करना था लास्ट। एक तो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट रहता है, यस रेरा में फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट रहता है, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न्स देने हैं, मंथली नहीं देने हैं, एनुअल रिटर्न्स देने हैं या क्वार्टरली रिटर्न्स देने हैं, तो ये सब चीजें फ्लेक्सिबल हमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फिर कोर स्ट्रेंथ जो रहती है वुमेन्स की, दैट इज आई ऑलरेडी सेड कि बहुत नीश या बारकाई में या बहुत डिटेल में एक वुमेन ऑडिट कर सकते हैं। what I feel, I don't know what I feel, to leveraging core strengths, niche advisory, dispute resolution, enhance client relationships, ये सब चीजें एक women में बहुत अच्छी रहती है। Hence, we could as a woman take up the practice of RERA very easily, right? And plus risk, reduce risk. IBC में इतना रिस्क रहता है insolvency professional में कि we wouldn't think of taking that as a profession, बट रेरा में इतना रिस्क नहीं है, ठीक है। एक क्लाइंट आपके पास आता है, 4 चीजें आपको देके जाता है। लाइक प्रमोटर आया तो वो आपको इनकम टैक्स का काम भी देगा, आपको GST का काम भी देगा, आपको फाइनेंस का काम भी देगा, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, डॉक्यूमेंटेशन बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल थिंग्स वुड बी कवर्ड। हेंस इट इज वेरी यूजफुल कि आप रेरा, मतलब रेरा में घुसने से क्या फायदे है बेसिकली। सो दिस इज योर चार्ट path to RERA, and last but not the least, we come to the end of your RERA session. I hope you all have enjoyed this session. I hope I haven't have taken so much of time, right? And I hope I have shared some useful information to you, right? So, okay. Any questions? Atisha? Where's Atisha? Yes. So if anybody has any questions, they can ask before we move on to the formal vote of thanks. Ma'am, where will get the case studies to go through? Institute website. Okay. ICAI website, ICAI. There we have a number of case studies also. Also, if you need to practice, मतलब अगर आप start करना चाहते हो तो you could do an institute course also of RERA. It's all very useful and very knowledgeable. ठीक है, तो वो भी pass out कर सकते हो आप, बहुत अच्छा course है. I have done it, so it's very good.
केस स्टडीज आपको रेरा की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी. महारेरा का अगर आप पर्टिकुलरली महाराष्ट्र से हो तो महारेरा पे तो है केस स्टडीज. देन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडीज अवेलेबल है. न्यूज़पेपर्स इज द बेसिकली द मेजर सोर्स ऑफ केस स्टडीज फॉर रेरा, राइट? So you could get it from there. Thank you, madam. Yeah. Anybody else has any questions? Okay, then I would just request CM Anjali Modi to present the formal vote of thanks. Thank you, Itisha. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for today's insightful session on opportunities of chartered accountant for RERA. On behalf of Visionary Women, I extend my heartfelt gratitude to our speaker, C.A. Shraddha Sanghi, for sharing her insightful session on opportunities for CA in RERA. Your detailed explanation of the various opportunities, that is for scope of work ranging from audit and certification work, project registration, fund utilization certification, and compliance advisory. And second, who are our prospective clients and what services that we should provide to our prospective clients. I also like to express my sincere thanks to Visionary Women platform for organizing such knowledgeable session. Last but not the least, I would like to thank to all the active listeners for today's session. Thank you, everyone, and bye. Have a happy weekend. Thank you. Thank you, Thank everyone. you. Thank Anybody you. has any query can also connect me through personal email if you have any query regarding your professional, like any not from related to topic. Also, you can share me from like on my personal email. I already shared my PPT with you all, right? So thank you so much, everyone. Okay, Atisha. Yeah, thank you. We can end the session, no? Yeah. Okay.